Hello students, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, we have already started with the chapter division, that is chapter number 5, and we have already solved exercise 5.1, 5.2, 5.3 and 5.4 where we did only 3 sums. So you can just have a look on page number 68 where we have done up to the third question, that is fill in the blanks using the division and multiplication facts. Okay, so today we will just see how we can solve the word problems. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्व करेंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको पता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है जो कि स्टेटमेंट के फॉर्म में रहता है और हम उसे स्टेटमेंट को पढ़कर फिर हम उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो let us come for exercise 5.4 fourth question. Solve the given word problems. So first question, there were 21 bouquets in a flower shop. 7 people buy all the bouquets and distribute them equally among themselves. How many bouquets did each person get? So in this question you have been given that a flower shop, एक फूल के जो दुकान है उसमें 21 बुकेज मतलब आपको पता है कि फूल के जो गुच्छे रहते हैं, हम जिसे बर्थडे में या कोई पार्टी में हम लेकर जाते हैं तो उसे बुके कहते हैं। तो 21 बुकेज वर देयर इन ए फ्लावर शॉप एंड 7 पीपल, 7 जन उस शॉप में आए और उन्होंने वो सारे के सारे बुकेज को खरीद लिया और उन्होंने आपस में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है एंड दैट ऑल्सो दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो बुके 21 बुकेज जो शॉप में थे वो सभी बुकेज को 7 पीपल ने खरीद लिया है और फिर वे लोग अपने आप में ये 21 बुकेज को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मनी बुकेज डिड ईच पर्सन गेट। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है कि जैसे 7 लोग आए थे तो उसमें से हर एक लोग के पास, हर एक व्यक्ति के पास कितने बुके रहेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू फर्स्ट राइट द स्टेटमेंट्स। आपको पहले स्टेटमेंट्स लिखना है और फिर आप कौन से ऑपरेशन, जैसे कि आप प्लस कर रहे हो कि माइनस कर रहे हो कि डिवाइड कर रहे हो कि मल्टीप्लाई कर रहे हो, उस ऑपरेशन को आपको गेस आउट करना है और फिर आपको उस हिसाब से इस सम को सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट अस जस्ट राइट द स्टेटमेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट सी द स्टेटमेंट्स आई हैव रिटन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. So number of bouquets in a shop is equal to 21. Number of people who bought the bouquets is equal to 7. So these two things were given in your statement. So from there only I have written it. Then therefore bouquets each person gets is equal to, so each person gets is 21 divided by 7, that is 3. So I have done the division for you. So please look to the division. Then just remember the table of 7 and you can get 7 3s are 21. Now your answer will be 3 buckets were there with each person. Okay, so this is how you have to write the statement for your word problem. Now let us read the second question. There are 20 sandwiches at a birthday party.
The sandwiches were equally distributed among 10 children. How many sandwiches did each child get? So this question is about the sandwiches that are there at a birthday party. So you can see that birthday party में कितने sandwiches थे? 20 sandwiches थे. और कितने बच्चे आए थे birthday party में? 10 children have come to attend the birthday party. So each child will get how many sandwiches if there are 20 sandwiches? So 10 children आए थे birthday party में और उनको कितने sandwiches मिले if 20 sandwiches are there in all? So that we have to again write the statements and we have to go for the calculation. Okay, now let us see how we can write the statements. Number of sandwiches you have been given with 20, number of children 10, and number of sandwiches for each child. You can go for division, that is 20 divided by 10. Now you can see I did the division here. So 10 ka table is very easy for you. So 10 2s are 20. So you got your quotient as 2. So your answer will be 2. Therefore each child gets 2 sandwiches. So this is what you have to take out, isn't it? So हर बच्चे को कितने sandwiches मिलेंगे? 2 sandwiches. Okay. So this is how you can get the solution for the word problem. Okay. Now let us go for the next question. Now the third question is, Shrutika has 18 stamps. She wants to paste equal number of stamps on 3 pages of an album. How many stamps can she paste on each page? Okay, तो आपको इसका मीनिंग समझ में आया है? क्या समझ में आया है कि श्रुतिका एक गर्ल थी जिसके पास कितने स्टैम्प्स थे? 18 स्टैम्प्स थे. अब क्या करेगी वो? उसको वो स्टैम्प्स को अपने नोटबुक के पेजेस में उसे वो पेस्ट करने थे, चिपकाने थे उसे. तो वो क्या करेगी? अभी उसको कैसे चिपकाने हैं? उसको चिपकाने हैं कि उसके पास 3 पेजेस है, ब्लैंक पेजेस, और उसे वो तीनों पेजेस को फिलअप करने हैं बाय पेस्टिंग द स्टैम्प्स. बट शी वांट्स दैट ईच पेज, 3 पेजेस में हर एक पेज में इक्वल नंबर ऑफ स्टैम्प्स वो फिक्स करना चाहती है. इक्वल नंबर ऑफ स्टैम्प्स उसे पेस्ट करना है हर पेज में. तीनों पेज में वो पेस्ट करेगी स्टैम्प्स, बट एवरी पेज शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टैम्प्स. सो हाउ कैन शी distribute these stamps among the 3 pages? Now let us see how we can write the statements. Now see how we have written the statements. So number of stamps is equal to 18, number of pages is equal to 3. Okay, so you have been already given with this information that Shrutika has 18 stamps and she wanted to paste it on 3 pages. So you have got this 2 information. Now you have to find out number of stamps on each page to be pasted. Okay, so that will be 18 divided by 3, and see I have divided, so you are getting 6 as your quotient, as your solution. So you can write each page should have 6 stamps. Okay, so this is how you can solve your word problem. तो यहाँ पर आपको 3 का टेबल बाय हार्ट होना चाहिए. ठीक है. Now let us move to next question. Next question is the 4th question, that is D1. Kinjal's mother bought 25 mangoes. She distributed them equally among 5 members of the family. How many mangoes did each family member get? तो आप क्या करोगे इसमें? ये आपको खुद करना है. तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप स्टेटमेंट लिखोगे. कैसे लिखोगे स्टेटमेंट? मदर बॉट
मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज मदर बॉट, ऐसे लिखोगे, इज इक्वल टू 25. ओके, देन number of family members is equal to 5. Then what you will do, 25 divided by 5 will be your, each family member will get mangoes. Okay, so 25 divided by 5 करोगे और फिर आपको आंसर मिल जाएगा. तो आपको 5 का टेबल बहुत इजी है, वो आपको बाई हार्ट करके आपको ये डिवीजन सॉल्व करने पड़ेंगे. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मैंगोज मदर बॉट इज इक्वल टू 25. देन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज इक्वल टू 5. देन each family member will get is equal to 25 divided by 5. Then you have to solve that division and you have to write the answer that so many mangoes each family member will get. So try to do this sum. Very easy it is. Okay, now let us move to next one. In a cricket match, 4 players made equal runs. If the total runs made by them were 20, how many runs did each player make? Okay, so you will write total number of total runs is equal to 20. Number of players playing the cricket match is 4. So runs each player made is equal to 20 divided by 4. So that will give you the solution for your question. तो इसमें भी आपको स्टेटमेंट बना के लिखने हैं और आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो ये ई वाला मैं बता देती हूँ. और नेक्स्ट जो है एफ, शालिनी बॉट 28 crayons. She distributed among 4 children. How many crayons did each child get? ये आप होमवर्क करोगे. तो डी और एफ आपके लिए होमवर्क है. ठीक है, ई वाला मैं करके आपको दिखाती हूँ. Now you can have the statements of question number 4E. जो number of runs is equal to 20. Number of players playing the match is 4. The number of runs made by each player can be solved using 20 divided by 4. Now you can see the division. 4 का टेबल आपको याद करना है. So 4 5 is 20. So each player made 5 runs. Okay, so this is how you have to go for your word problem. तो आपको D और F होमवर्क दिया गया है, तो आप ट्राई कीजिए स्टेटमेंट लिखकर और ये सम को सॉल्व करने का. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. हमने एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट कर लिया है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड में पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है. ओके, सो इन दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड वी विल फर्स्ट सी व्हाट आर द नंबर्स इन division methods are called as. Okay, so let's learn how to divide larger number using another method called long division method. So in this method you will learn how we can divide the big numbers. Okay, now let us see. अब देखिए, मैंने एक डिवीजन आपको यहाँ पर दिखाया है, that is 5, 20 divided by 5. So I have divided this 2 numbers and I got the remainder as 0. तो अब देखिए हम ये नंबर्स को कैसे, किस नाम से बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो 20 था, आप देख पा रहे हैं ये 20, इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड. इसे हम कहते हैं डिविडेंड. तो ये जो अंदर के साइड बड़ा नंबर है इसे हम डिविडेंड कहते हैं. ठीक है, अब ये जो नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, इस नंबर को हम कहते हैं डिवाइजर. दिस इज कॉल्ड एज डिवाइजर. ओके, एंड वट एवर आंसर यू आर गेटिंग दैट इज कॉल्ड एज कोशेंट. और जो यहाँ पे आपको
यहाँ पर जो आपको मिलता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। सो व्हेन एवर आपको ये ऐसे टाइप के डिवीजन दिए होंगे तो आपको ये सब वर्ड्स यूज़ करके आपको सम्स दिए होंगे तो आपको ये समझना है कि कौन से नंबर को वो बोल रहे हैं डिविडेंड और किसे वो डिवाइजर बोल रहे हैं, किसे क्वोशिएंट बोल रहे हैं और किसे रिमाइंडर बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऐसे इस तरह से भी आपका सम दिया होगा तो हम कह सकते हैं ये जो बड़ा नंबर है दिस इज योर डिविडेंड, दिस थिंग इज योर डिवाइजर। ओके, सो व्हेनेवर द सम इज गिवन, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है उस समय आपके पास सिर्फ डिविडेंड और डिवाइजर आपके साथ रहता है। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमें ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये दो चीज़ें मिलती हैं। ओके, तो जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आपके पास सिर्फ डिविडेंड और डिवाइजर होता है और उसके बाद जब आप सॉल्व करते हो उसके बाद आपके पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये दो टर्म्स आपके आते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ योर एक्सरसाइज 5.5 is there and which questions are there in exercise 5.5। देखिए अब एक्सरसाइज 5.5 है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि डिविडेंड इज इक्वल टू 18, डिवाइजर इज 2, क्वोशिएंट इज 9। ओके, देन यू हैव टू राइट the in the boxes you have to write in mathematical form। okay, तो देखिए यहाँ पर डिविडेंड दिया है तो let us write the dividend। now divisor is 2 and after dividing it you get 9, so this is how you have to write। now see in the next one 36 is the dividend, 6 is the divisor and quotient is 6। तो यहाँ पर जो है ये देखिए आप वर्ड्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है, आपको यहाँ पे वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। नाउ 64 डिवाइडेड बाय 8, अब 64 डिवाइडेड बाय 8 आपको ये सॉल्व करना है और फिर आप डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वेश्चन यू हैव टू फिल अप। So first of all, if this is dividend, write down here 64, divisor is 8। now for quotient you need to solve this। तो आपको डिविडेंड और डिवाइजर तो मिल गए हैं लेकिन क्वोशिएंट के लिए आपको ये सम को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देख पा रहे हैं आप ये जो सम है हमने इसे यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। So you can see 8 8s are 64। So as you can see here is your dividend, this is divisor, तो ये क्या हो गया आपका quotient, ये मैंने आपको पहले ही दिखाया है। ठीक है, तो write down 8 here and in the box of quotient write down 8। okay, so this is how you have to solve it। now let us see the next question, that is 21 divided by 3। now 21 is the dividend, so you can see यहाँ पर 21 लिखा है तो आप यहाँ स्पेलिंग में लिख दोगे डिविडेंड। ओके, फिर डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज 3, so write down 3 and to get the quotient you have to solve this problem। okay, so now you can see that we have solved this question 21 divided by 8, so we are getting quotient as 7। आपको जो भी आंसर मिला है वो 7 मिला है और ये इसे आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर जो 7 आपको मिला है आप यहाँ पर लिखोगे और क्वोशिएंट के बॉक्स में भी आप 7 लिख दोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45 डिवाइडेड बाय 9, तो इसमें डिविडेंड कौन सा है, डिविडेंड कौन सा है 45। तो देखिए यहाँ पर 45 लिखा है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर
द वर्ड डिविडेंड यू हैव टू राइट. अब क्या है 9. तो 9 क्या हो गया आपका? 9 हो गया आपका डिवाइजर. सो राइट डाउन डिवाइजर. देखिए 9 दिया हुआ है यहाँ पर. और फिर आप क्या करोगे? इसे सॉल्व करोगे. नाउ लेट अस डू दैट. तो देखिए हमने सॉल्व कर लिया है और हमें क्या मिल गया है? क्वोशंट इज 5. So let us fill up the boxes and we are getting quotient as 5. Okay, so this is how we have filled in the boxes by going through the words, that is dividend, divisor, quotient, है ना. ये सब words हमने use किया है और हमने boxes को fill up कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन. तो यू हैव टू गो फॉर द मेथड. आपको यहाँ पर मेथड को सॉल्व करना है और आपको फिर इसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिविडेंड 14 है, डिवाइजर 2 है. नाउ लेट अस गो फॉर द टेबल ऑफ 2. आप टेबल ऑफ 2 को बाय हार्ट कीजिए और जस्ट रिपीट कीजिए. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12 and 2 7s are 14. You can get here 2 7s are 14. So let's write down here 7 और फिर यहाँ पर आपका हो गया 14 and when you are subtracting 14 minus 14 will give you 0. Okay. Now let us move to the next one. आपको 5 का टेबल याद करना है और 5 के टेबल में 25 कब आता है? 5 5s are 25. So let us write down and again you are getting 0 as remainder. आप यहाँ 2 0 भी लिख सकते हो, 1 0 भी लिख सकते हो. ठीक है, तो जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है तो आप 2 0 भी लिख सकते हो और 1 0 भी लिख सकते हो, सेम है. ठीक है, फिर आप देखिए 6 का टेबल. चलिए रिपीट कीजिए 6 का टेबल. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are is 42, isn't it? So let us write. So see. Now move to टेबल ऑफ 8. इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ टेबल याद करना है, नहीं तो आपका डिवीजन में डिफ़िकल्टी हो जाएगा. तो प्लीज़ 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 लर्न द टेबल्स. नाउ अगेन विल मूव टू टेबल ऑफ 8. So you will get 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24. So let us write here 3 and here 24. Again the remainder is 0. तो इसमें से ये क्या है आपका? ये सब है आपके डिविडेंड. और डिवाइजर क्या है? ये 2 है डिवाइजर, 5 है, 6 है, 8 है. These are your divisor. And what about quotient? Quotient is your 7, 5, 7 and 3. And remainder in each division, the remainder is 0. कुछ भी यहाँ पे देखिए हर एक के रिमाइंडर 0 है. ठीक है, तो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट कौन कौन से हैं ये आपको पता चल गया है. Now so many problems are there. Okay, so these all are homework for you. You need to learn the table of 9, 7, 5, 8, 4, 10, 8, 5. Okay, so all the tables you have to learn to solve these questions. Okay, now only the last question I will just show you. देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या है? लास्ट क्वेश्चन में है 5 0. तो 5 zeros are 0. तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए इस तरह से. ठीक है, और बाकी के तो टेबल्स वाले हैं, आपको इजीली आ जाएंगे. ओके, नाउ ट्राई इट.
let us see the review exercises where you have been given with picture, isn't it? So here the picture is given to you, that is 12 classes of juices among 6 children. तो इसमें कैसे करना है, हमको यहाँ पर 12 लिखना है, यहाँ पर 6 लिखना है, और फिर क्या करना है, हमें ग्रुप्स करने हैं ना. हमने ये बताया था आपको कि यहाँ पर 6 है तो 6 स्क्वायर ले लीजिए और ईच ग्लास को इसमें ट्रांसफ़र कीजिए, तो देख लीजिए कितना हो जाएगा. तो इसमें आ जाएगा आपके ईच ग्रुप में 2 ग्लासेस. ओके. फिर यहाँ पर 16 कैरेट्स अमॉन्ग 8 रैपिड्स. अगेन 8 बॉक्सेस यू हैव टू मेक and then you have to distribute 16 carrots equally in each box. आपको 8 boxes बनाने हैं और आपको क्या करने हैं, 16 carrots को उसमें इक्वली डिवाइड करने हैं. यहाँ पर भी आपको 8 boxes बनाने हैं जो कि पैरेट को रिप्रेजेंट करेगा, और आपको ये जो 24 चिलीज है, मिर्ची, इन्हें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो देखिए आप इजीली ये कर सकते हैं. आपको मैंने बताया था कि ऐसे क्रॉस 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 ऐसे करके करने के लिए, तो आप जैसे ही 8 बॉक्सेस लोगे तो 8 चिलीज़ को क्रॉस कर दोगे, सो दैट दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन 8 बॉक्सेस. फिर आप 8 चिलीज़ रखो और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. उसके बाद है आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको कराए गए हैं. सो 10 - 2, देखिए 10 - 2, इसमें जो भी आपके करेक्ट द नंबर्स इन द सर्कल. तो ये 5 नहीं होगा, ये 5 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 2. सेम नंबर्स विल कम. यहाँ पर 35 - 5 होना चाहिए. तो यहाँ देखिए आपके 7 है, तो ये 5 होने चाहिए, ये भी आपके 5 होने चाहिए, ये भी आपके 5 और ये भी 5. So how many 2s are there? 1 2 3 4 5. So here it will come as 5. Here how many 5s are there? 1 2 3 4 5 6 7. So यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा. ठीक है. ये आपके नंबर लाइन वाले जो सम्स है ये भी हमने किया था. देखिए 16 बुक्स among 4 children. ओके. तो 16 पे चले जाइए. ये रहा आपका 16. Okay, now 4 children, so you have to go for 4. 1 2 3 4. 12 पे आ जाइए, फिर आ जाइए 8 पे, फिर आ जाइए 4 पे, फिर 0 पे. सो स्टार्ट कहाँ से किया हमने, 16 बुक्स थे इसलिए 16 से किया. गो बैक स्टेप्स, कितने स्टेप्स गो बैक किए, 4. और हाउ मेनी दिस स्टेप्स आर देयर टू रीच 0? 1 2 3 4. सो 4 times to reach 0. Okay, so let us write here. ठीक है. Now let us see the next question. Distribute 14 ice creams. So ये देखिए 14 पे चले जाइए आप. ठीक है. 7 children, that means you need to go back 7 steps. So 1 2 3 4 5 6 7. So 14 से 7, then 7 से 0. Okay, so 14 go back 7 step to get 2 times. Okay, so 14 7 2. Now write the division facts. So you need to write the division facts. So division facts will be what? 7 will give you 9. 63 divided by 9 will give you 7. देखिए ये तीनों नंबर्स ही बार बार आ रहे हैं लेकिन ऑपरेशन अलग है. ठीक है. फिर 40 divided by 8 is 5 and 40 divided by 5 is 8. Okay, now you can already do this divide and find the question, very easy.
ना 23 डिवाइडेड बाय 23 ये आपको सॉल्व करना है। तो कोई भी फैक्ट में देखिए, फैक्ट्स में बताया था दोनों नंबर डिवाइड होंगे तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये सब तो आप डिविजन कर ही सकते हो, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स देख लीजिए। 30 डिवाइडेड बाय 3 is 10, it is true. Any number divided by 1 results in 1, this is false. 0 divided by any number is 0, true. 42 divided by 6 is equal to 7, means 6 into 7 is 42, yes. यू हैव वर्ड प्रॉब्लम्स, ये वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको पढ़ने हैं और आपको सॉल्व करने हैं। ऑलरेडी मैंने 4 to 5 प्रॉब्लम्स आपको बताए हैं, तो आप उसको फॉलो करके आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट ऑफ विद आवर चैप्टर डिविजन। सो जस्ट go for the tables and practice the chapter. Thank you.